Hello everyone, so welcome to your own channel is called as Mathematics by Rumina, and today in this video we are going to start and continue with your continuity and differentiability. We were discussing about continuity itself. We were on 5.1, question number 13 to 20 we are covering to this class. So let's get started. Let's not waste much time over the same things. So now if I just see question number 13, it says to me, is the function defined by fx equals to x plus 5, x less than equals to 1 and x minus 5, x greater than 1 is a continuous function. And now let's get started. So if I just see one thing over here, यहाँ पे मैं कहाँ देखूंगी, मैं 1 पे डिफाइन करूंगी. फंक्शन पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हम 1 पे ही देखते हैं. I explained in the last class also that x less than 1 है. Obviously less than 1 पे x plus 5 continuous होगा ही होगा. x greater than 1 है तो obviously x minus 5 जो है वो continuous होगा ही होगा इस values पे. What about 1? That we have to decide ourselves. So for that we are going to find left hand limit, right hand limit, and then we are going to find our f1 also. So for now, for left hand limit, I know the formula that we are going to use is limit x tends to 1 minus limit x tends to 1 minus fx. So that would be your लिमिट x टेंस टू 1 माइनस में क्या आएगा, x प्लस 5 आएगा, x प्लस 5 विच वुड बी लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h प्लस 5. जस्ट पुट योर x एज h एज 0. जैसे मैंने यहाँ पे 0 रखा, इट वुड बी 1 प्लस 5 दैट इज 6. सिमिलरली फाइंड द राइट हैंड साइड. से लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx विच वुड बी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एंड द फंक्शन इज x माइनस 5. तो यहाँ से क्या आने वाला है मेरे पास, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h माइनस 5 विच इज़ 1 माइनस 5 विच इज़ योर बेसिकली माइनस 4. क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है. तो क्या मुझे f1 निकालने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है. वैसे f1 निकालोगे तो यहाँ पे मेरे पास 6 ही आने वाला है. एंड सिंस आई नो दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर it is not continuous. It is not continuous, and that was our answer. It is not continuous at x equals to 1. ये मेरे पास मेरा आंसर हो गया. Moving towards the next slide. If you just want to take a screenshot, you can do that. Otherwise, the question was simple. It can be done as a homework also. And now let's move ahead. Let's discuss your question number 14. Discuss the continuity of the function f where f is defined as this. देखो 0 पे भी देखना पड़ेगा, 1 पे, 3 पे एंड 10 पे, सब पे वर्क करना पड़ेगा. वेन एवर यहाँ पे क्या है, 0 जो है वो छोटा है मेरे x से, बट व्हाट इफ x अगर मेरा छोटा होता तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा. ठीक है ना, हमें सिर्फ इन वैल्यूज़ पे ही जज करना होता है. सो नाउ एट x इक्वल्स टू 0, मुझे पता है x इक्वल्स 0 में मेरा फंक्शन क्या है. मेरा फंक्शन जो है वो कॉन्स्टेंट है. कॉन्स्टेंट तो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है. सो वी कैन लीव इट ओवर हियर. At x equals to 1, I am going to find my left hand limit and my right hand limit. So let's start with the working part. Limit x tends to 1 minus fx. और 1 minus में क्या है, that is x is less than 1, that is 3. Right hand limit में क्या है, limit x tends to 1 plus fx. और 1 plus में क्या है, that is your 4. So since we know that left hand limit is not equal to right hand limit, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, therefore my function is not continuous. Okay, my function is not continuous at that value जिस पे भी हम निकाल रहे थे, at x equals to 1. Similarly we are going to find for 3 also. So at x equals to 3 we are going to find the left hand limit and the right hand limit. So just take a look over here. So for x equals to 3 we are going to have limit x tends to 3 minus, and for right hand limit we are going to have limit x tends to 3 plus fx. Okay, so we have this as the function. And now just take a look, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स. अब देखो 3 माइनस में जाएगा, सो x दैट इज x इज लेस देन 3, दैट इज योर 4, एंड 3 प्लस भी क्या है 5. यहाँ पे भी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट. देयरफॉर फंक्शन क्या है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3. x इक्वल्स टू 3 पे भी क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है. एंड एट x इक्वल्स टू 10 क्या होगा, मुझे पता है x इक्वल्स टू 10 पे तो मेरे पास जो मेरा फंक्शन है दैट इज माई simple 5 obviously continuous होगा ही होगा. That means my function is not continuous at 3 and at 1. Rest all the values the function is continuous. So function is discontinuous at 1 and 3.
मतलब कि 1 और 3 पे मेरा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस, एंड दैट वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल था, आई नो बच्चों को ज़्यादा डाउट आते नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स डिस्कस द कंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। जिधर मेरे पास देखो एट x लेस देन 0 मुझे पता है मेरा जो फंक्शन है दैट इज गिवन टू मी एज 2x। 2x क्या है, 2x इज अ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल कॉन्टिन्यूस होते हैं एट r, as it is a polynomial, so therefore it is continuous at x less than 0. Similarly, अब देखो अब मुझे 0 पे जज करना है, दैट इज when my x is equals to 0, so I'm going to find left hand limit and I'm going to find my right hand limit. So that would be limit x tends to 0 minus 0 minus में क्या है, that is x is less than 0, that is 2x, which is basically जब मैं 0 पुट करूँगी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. If you want to put, you can even put 0 minus h, but 0 minus 0 is 0 itself. And now limit x tends to 0 प्लस पे क्या आएगा, 0 प्लस पे वेर 0 इज लेस देन x, दैट इज 0. तो अगेन यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड इज ऑल्सो इक्वल्स टू f ऑफ 0, बिकॉज f ऑफ 0 मेरे पास 0 ही आएगा. सो येस, लिमिट एग्जिस्ट करती है 0 पे. नाउ लेट्स चेक एट 1. सो एट 1 वी आर गोइंग टू हैव लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx. 1 माइनस में क्या है बेटा, 1, दैट इज x इज लेस देन 1, दैट इज 0. Similarly, we will have right hand limit, that is limit x tends to 1 plus fx, which would be basically 1 plus में क्या होगा, 4 into 0, that is sorry 4, 1 यहाँ पे 1 है ना, so let's put h over here. So h tends to 0, so 4 into 1 plus h, which is h is 0 basically. तो आंसर कितना 4 आया. That means at x equals to 1 the function is discontinuous. So therefore function is discontinuous at x equals to 1, मतलब कि r माइनस 1 के लिए जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. और ऑब्वियसली x ग्रेटर देन 1 पे तो होगा ही होगा, बिकॉज 4x है, पॉलिनॉमियल है, कंटिन्यूस होगा ही होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. सो बस इतना बोल सकते हैं, fx इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, रेस्ट ऑल द वैल्यूज पे क्या है, कंटिन्यूस है, मतलब कि r माइनस 1 पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा ही होगा. सिंपल लगा होगा. कैन आई मूव अहेड, टेक अ स्क्रीनशॉट, हरी अप क्लास. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी. अगेन अ सिंपल कॉन्सेप्ट, हमें बस -1 और +1 पे जज करना है, दैट व्हाट इज गोइंग टू बी आवर आंसर. अगेन एट x इक्वल्स टू -1 पे पहले मैं अपना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगी और फिर मैं अपना राइट हैंड लिमिट निकालूंगी. सो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इट वुड बी लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस fx. -1 माइनस पे क्या होगा, -2 हो जाएगा, तो -2 आ गया. Limit x tends to -1 plus fx, which would be basically 2x. So limit h tends to 0, 2 कितना है यहाँ पे देखो, -1 प्लस h को 0 पुट करूँगी तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा. दैट मीन्स मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, मेरे पास यहाँ से आ गया मेरे पास -2, राइट हैंड लिमिट आ गई. सिमिलरली आई विल ऑल्सो फाइंड माई f ऑफ -1, which would be -2 itself. So I can just say left hand limit is equals to right hand limit. So therefore, and is also equals to f of -1. Therefore, I can say that my function is continuous at x equals to -1. We are done. Now at x equals to 1 पे भी हम लोग एक बार जज कर लेते हैं अपना. Again, I'm going to find my left hand limit, my right hand limit and my f1. So left hand limit क्या होगा, limit x tends to 1 minus fx. 1 minus का मतलब है x is less than 1, that is 2x. So 2 और देखो कुछ नहीं है, लिमिट पुट कर देते हैं, h tends to 0. So 1 minus h, 1 h tends to 0 हो जाएगा, तो it would be 2 itself. Similarly, limit h tends to 1 plus fx and it is just simply 2. So यहाँ पे क्या है, and f of 1 भी क्या था मेरे पास, 2 into 1 is 2. Since these all are equal, I will just say left hand limit is equals to right hand limit is equals to f of 1. So therefore, the function is continuous at real number r. Function is continuous at real number r and that was your answer. Okay, simple concept है, बस एक तरीका है करने का, that we need to learn and that we need to understand basically. Now moving ahead, find the relationship between a and b so that the function f is defined as this is continuous at x equals to r. Now if you just take a look, मुझे यहाँ से क्या पता है बेटा कि आई हैव माई फंक्शन डिफाइन इन दिस मैनर, जहाँ पे a और b है और मुझे कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना है a एंड b का. दैट मीन्स फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है. जब भी फंक्शन कंटिन्यूस है इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 3. इसका मतलब है आई कैन ऑल्सो राइट लिमिट x टेंड्स टू
3 minus fx is also equals to limit x tends to 3 plus fx is equals to f of 3. बस इसी का मुझे यूज़ करना है. तो पहले निकालते हैं लिमिट x tends to 3 माइनस का मतलब है x is less than 3, that is this part. a इंटू एक्स प्लस 1 3 माइनस एच. अगर मैं इस पर 3 माइनस एच भी पुट करूँगी, देख लेंगे, पहले राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते साथ साथ में. x टेंस टू 3 प्लस दैट इज बी एक्स प्लस 3 और f ऑफ 3 क्या होगा 3a प्लस 1. जहाँ पे भी इक्वल्स टू वाला होता है वो वाली वैल्यू लेते हैं, दैट इज 3a प्लस 1. पुट कर देते हैं. सो 3 माइनस एच आएगा, एच तो 0 भी जाएगा, सो 3a प्लस 1. 3 प्लस एच आएगा, एच 0 हो जाएगा, तो इट विल बी 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1. उठा के कंपेयर कर दो इन दोनों को, बिकॉज ये तो इक्वल ही है, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. So 3a plus 1 is equal to 3b plus 3. Now if you just see, if I just try to simplify this, 3a minus 3b is equals to your 3 minus 1 is 2. Let's take 3 common. It would be a minus b is equals to 2 by 3. That means a is equals to 2 by 3 plus b. That is for any value of b, we can have any value of a. So final answer would be for any value of b, we can find a value of a, and that was your final answer for this question. Simple question था, बस समझने की बात थी. We have one more question like this, question number 18. So for what value of lambda is the function defined fx equals to this is continuous at 0 and continuous at 1. वो ऑलरेडी मुझे कह रहा है कि मुझे अपनी इन दो वैल्यूज़ पे कंटिन्यूटी डिफाइन करनी ही करनी है. So let's get started. Let's work on this part now. So first of all, we are going to work on x equals to 1. Sorry, x equals to 0. अगेन मुझे क्या बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस होगा. कंटिन्यूस होगा ही होगा. सो बेसिकली ही इज टेलिंग मी कि फंक्शन तो मेरा कंटिन्यूस है, वैल्यू ऑफ लैम्डा निकाल दो. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट इज इक्वल्स टू योर एफ ऑफ 0. तो यहाँ से क्या आएगा बेटा मेरे पास, इट वुड बी लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x tends to 0 plus fx and that is equals to your f of 0. Limit x tends to 0 minus fx है तो क्या हो जाएगा lambda x square. ऑब्वियसली लिमिट तो रहेगा ही रहेगा. x tends to 0 minus 2x is equals to 4x plus 1 और equals to 0 में तो बस 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा, lambda खत्म ही हो जाएगा. देखो अब यहाँ पे 0 माइनस है, 0 माइनस h का होल स्क्वायर. यहाँ भी लिमिट हम पुट करेंगे x टेंस टू 0 प्लस. ओके, सो h टेंस टू 0 लैम्डा 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h इज इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे भी पुट कर देते हैं. सो 4 लिमिट आएगी h टेंस टू 0. सो 4 0 प्लस h प्लस 1. यहाँ पे तो 0 ही है, सो इट्स गोइंग टू गिव मी द आंसर एज 1. यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लैम्डा 0 एंड 0, तो यहाँ पे तो प्रॉपर 0 आने वाला है. 0 इक्वल्स टू 1 क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल. सो therefore lambda can have any value, that is lambda belongs to R. Lambda belongs to R because lambda can have any random value. Similarly for 1 also we are going to do the same working, and 1 पे भी बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा. if you want you can just take a screenshot because मैं यहाँ पे चेंजेस कर दूँगी. तो मैं यहीं पे उठा के इसे चेंजेस कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट रबिंग द लास्ट पार्ट, क्योंकि वही थोड़ा बहुत जो है वो चेंज होने वाला है. बट यस, इसका आंसर ऐसे कुछ रहता है. सो यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस. ओके, अब देखो 1 माइनस या 1 प्लस की अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे पता है कि हम लोग 1 माइनस या प्लस हो वो ऑब्वियसली x ग्रेटर देन 0 ही रहेगा हर बार. तो जब मैंने अपने यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो कितना आएगा, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1. सो दैट इज 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज़ 5. ओके, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस और 1 माइनस की बात होगी, सो ऑब्वियसली मेरा फंक्शन भी चेंज होने वाला है. ये फंक्शन नहीं पॉसिबल. अब 1 माइनस पे भी क्या पॉसिबल है मेरे पास, दैट इज़ 4x प्लस 1 ओनली. 4x प्लस 1 यहाँ पे भी 1 माइनस, तो 1 माइनस h कोई डिफरेंस नहीं, बिकॉज h टेंस टू 0 पुट कर दूँगी. तो 4 प्लस 1 5, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 4 प्लस 1 दैट इज़ ऑल्सो
5. 5 is equals to 5, so therefore lambda belongs to 1. So for the same question we have the same result, that is your lambda belongs to 1. There is no difference in the answer if you see. Okay, there is no difference in the answer because मेरे पास जो concept था वो मेरे पास same ही रहा. There is no difference in the concept part. I hope कि इतना बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. किसी बच्चे को कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि अच्छा. और वो पूछ रहा है व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी. पहले उसने बोला कि लैम्डा निकाल दो इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 एंड नाउ इट इज़ आस्किंग अबाउट द कंटिन्यूटी पार्ट कि वेदर इट्स कंटिन्यूस और नॉट. तो मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास 5 आता है, तो 5 इक्वल्स टू 5 दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट इज इक्वल्स टू योर f ऑफ 1. दैट मीन्स व्हाट आई कैन से फ्रॉम हेयर, आई कैन सिंपली से येस माई फंक्शन इज कंटिन्यूस at x equals to 1 and that was my final answer for this question. Function continuous था 1 पे और lambda की value क्या थी, that is real number r. Moving towards the next question, one of the most important question that we have. इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से यूटिलाइज होता है मेरा नेबरहुड वाला कॉन्सेप्ट, और हम इसलिए ही हर बार नेबरहुड अप्लाई करते हैं बिकॉज हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं सीखने हैं फॉर सॉल्विंग वन क्वेश्चन. ओके, और फॉर सॉल्विंग मल्टीपल क्वेश्चन वी विल ट्राई कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखे उसे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर दे, तभी वी आर गोइंग टू हैव अ गुड अप्रोच to understand the basic concepts. Okay, so always remember, do many questions with one approach, then only you will be able to crack the paper. Show that the function defined by gx equals to x minus greatest integer function x is discontinuous at all integral value, at all integral points I would say, where this is the greatest integer function dk. Okay, so let the integral value, let the integral point be c. अगर मैं इंटीग्रल पॉइंट c मानती हूँ दैट मीन्स अब मुझे क्या निकालूंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगी, राइट हैंड लिमिट निकालूंगी एट व्हाट पॉइंट, एट c. दैट मीन्स माई x विल टेंड्स टू c माइनस एंड c प्लस एंड विद द fx ऑब्वियसली. अब देखो यहाँ मेरा fx क्या होगा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू c माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटर फंक्शन x एंड सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx which would be x minus greatest integer function x. अब ये होता क्या है, GIF शॉर्ट फॉर्म क्या है, GIF है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अगर मैं दो एग्जांपल लेते 2.9 और 2, इसका मतलब है कि दोनों का आंसर क्या है, 2 है. दैट मीन्स जस्ट सपोज अगर मैं 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लूँगी, नॉट इंक्लूडिंग 3 ऑब्वियसली, अगर मैं 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लूँगी तो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो वापस 2 पर ही लाई करते. 2.9 वो वापस 2 पे आएगी, 2.99 वो वापस 2 पे आएगी, 2.1 भी 2 पे आएगी. दैट मीन्स सारी वैल्यू जो है अपनी पीछे वाली वैल्यू पे डिपेंड करती है. ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0. यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो c माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c माइनस एच. एक चीज़ ढंग से देखना, c माइनस एच जो है वो टेंड करता है 0 को, वो 0 होता नहीं है, वो समथिंग 0.0001, मतलब कि बहुत छोटी वैल्यू जो 0 से छोटी होगी. मतलब अब c जस्ट सपोज 2 है या 3 है, अगर c 3 है मेरे पास एंड h मेरा कुछ डिक्रीज है 0.001, तो 2.9999 है ना, ऐसा कुछ मेरे पास आएगा. 2.9 में कहाँ जाएगा, 2 पे जाएगा. दैट मीन्स वैल्यू क्या जाएगी, वो c माइनस 1 पे जाएगी. सो इट वुड बी बेसिकली यहाँ पे h को 0 पुट कर देना, या फिर चलो पहले लिख लेते हैं एक बार, वरना डाउट आएगा आपको. h टेंड्स टू 0, c माइनस एच माइनस c माइनस 1 आएगा, तो c माइनस c कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ h को 0 पुट कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, बिकॉज 1 माइनस माइनस इज प्लस एंड प्लस 1. यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट होगा चालू, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0. इट वुड बी बेसिकली योर c प्लस h माइनस c प्लस h. अब देखो c प्लस h है, अगर 2 होता है 2 से मैं कोई बड़ी वैल्यू ले लूँ तो जाएगी 2 पे ना, दैट इज c पे जाएगी. So it would be basically c plus h, limit h tends to 0. माइनस में क्या आएगा बेटा मेरे पास, माइनस में आएगा यहाँ पे सिर्फ c और c कैंसिल, दैट मीन्स 0 आ गया. 1 क्या है, 1 तो नॉट इक्वल टू 0 है. जब मेरे पास 1 नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा बेटा, दैट इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट विच वॉज आर c बेसिकली. क्लियर हुआ, सिंपल कॉन्सेप्ट है, 2-3 बार देखना समझ आ जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पाई. अब देखो यहाँ पे इफ आई जस्ट ब्रेक दिस फंक्शन, इसको मैं अपना जी एक्स लेट कर लेती हूँ, इसको मैं अपना एच एक्स लेट कर लेती हूँ, और इसको मैं अपना
एम एक्स लेट कर लेती हूँ, तो मुझे क्या पता है यहाँ से एक चीज़, दैट जी एक्स है मेरा एक्स स्क्वायर, क्या है, इट्स अ पॉलिनॉमियल. पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल इज कंटिन्यूस एट आर, कंटिन्यूस एट रियल नंबर आर. सिमिलरली मेरा जो एच एक्स है दैट इज माई साइन एक्स. साइन एक्स भी क्या होता है, साइन एक्स इज अ ट्रिगो फंक्शन. ट्रिगो फंक्शन की डोमेन क्या होती है, लाइक साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर आर होता है. सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट रियल नंबर आर. सिमिलरली माई एम एक्स इज कॉन्स्टेंट, इज अ कॉन्स्टेंट. और कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट आर. सो देयरफॉर I would say by the algebra of continuity that gx minus hx plus mx is continuous at R. So therefore it is continuous at x equals to pi, and that was our answer. This was the end of question number 20. Now we're not going to move ahead, just revise till here. In the next class I'm going to bring more questions for you people. Thank you so much. Bye bye you all. Meet you in the next class. Study hard.